بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ گراں قدر دوستو، ساتھیوں، خواتین و حضرات، یہ سورۃ العصر ہے، معروف سورت ہے، اور اس میں بیان کردہ مضامین ہمارے سامنے بار بار درس کی شکل میں آتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم ایک اور لیول پر اسے غور کریں گے۔ آڈینس کے حساب سے میں جب دیکھ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ہر سورت، ہر آیت کے ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں، گویا کہ یہ خزانہ ہے، خزانے کی کان ہے۔ آپ اس میں اپر سرفیس سے بھی مائننگ کر سکتے ہیں اور ڈیپر لیول پر بھی جا کر آپ مائننگ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو سیکنڈ تھرڈ لیول کی مائننگ کر کے بتاؤں گا کہ اس سورت کو ہم ڈیپر لیول پر کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ ان آیتوں کا پہلے ترجمہ سنیں، پھر اس کے بعد کی ورڈز پر بات کریں گے، پھر مضمون کے اندر جائیں گے۔ یہ ترجمہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس میں ہم 3 کی ورڈز پر بات کریں گے۔ واو یہ حرف ہے، اور 2 لفظوں پر بات کریں گے، ایک عصر، ایک خسر۔ جب ہم 3 چیزوں کو ہم سمجھ لیں گے تو اس کے بعد مضمون کو سمجھنا آسان ہوگا۔ عربی میں قسم کھانے کے لیے وا کا حرف بھی استعمال ہوتا ہے، با بھی آتا ہے، تا بھی آتا ہے۔ واللہ، باللہ، تاللہ، اور قسم بھی استعمال ہوتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ۔ قسم ہماری زبان میں الگ ہے، عربی زبان میں الگ ہے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم الفاظ کو ہم اپنی زبان میں سمجھتے ہیں۔ غلیظ اردو میں گندا کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی میں جب ہم غلیظ کہیں گے، میثاقاً غلیظا، تو مضبوط ہے، پختہ ہے، پکا ہے۔ تو ایسے ہی قسم کے سلسلے میں بھی ہمارے ہاں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ آدمی جب بات کرتا ہے تو کسی مقدس شے کا سہارا لے کر اپنی بات کی سچائی کو ثابت کرتا ہے، تو وہ قسم ہے اردو میں، ہماری زبان میں۔ قرآن میں قسم ان معنوں میں نہیں ہے، یعنی کسی پاک شے کا سہارا لے کر میں اپنی بات کی تاکید پیش کروں، میں اپنی بات کو مؤید کروں، میں اپنی بات کو پختہ کر کے پیش کروں۔ قرآن میں ان معنوں میں قسم نہیں ہے۔ قرآن میں قسم ہے کہ ایک پرنسپل ہوتا ہے، ایک کلیہ ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، وہ اصول اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ اصول اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو فلاں چیز کو دیکھو۔ یہ ہے قسم، شہادت، گواہی۔ جیسے کہ ان الانسان لفی خسر، یہ ایک پرنسپل ہے۔ قرآن میں ایسے 20-25 پرنسپلز ہیں، اور وہ اٹل حقیقتیں ہی لیکن انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ سب انسان خسارے میں ہیں۔ بہت بڑا پرنسپل بیان کیا گیا، بڑا قاعدہ بیان کیا گیا، بڑا کلیہ بیان کیا گیا۔ ہاں، ایکسپشنز کچھ ہیں الگ۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، فلاں چیز کو دیکھو۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے ہر انسان کو مشکل میں پیدا کیا۔
तुम बाज लोगों को देखकर समझ सकते हो कि इनकी जिंदगी चैन की है, ये चैन की बंसरी बजाते हैं, ये ऐश कर रहे हैं, ठट्टे उड़ाते हैं। नहीं, तुम्हें नहीं मालूम है, वो भी बड़ी मशक्कत में है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई? ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, मक्के को देखो, शहर को देखो कैसे बस गया। क्या रातों रात शहर बस गया तुम समझते हो? एक बाप, एक बेटा, एक बीवी ने जो मशक्कत की, उसके नतीजे में ये शहर आबाद हुआ। और हजारों साल की मेहनत के बाद आज तुम कुरैश के लोग यहां मजे उड़ा रहे हो। बड़ी मेहनत है इसके पीछे। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। तो हर बार कसम के बाद एक उसूल है, उसे तलाश करना है। तो कसम का मतलब है शहादत, शाहिद है, वल अस्र, शाहिद है जमाना, ये तर्जुमा हम कर सकते हैं। गवाह है जमाना। जमाना है कि नहीं हम बाद में बात करेंगे, अभी आप कसम को समझिए। शाहिद है जमाना के सारे इंसान खसारे में, गवाह है जमाना ये सारे इंसान खसारे में है। सारे इंसान खसारे में तुमको समझ में नहीं आया तो देखो लोगों को। तो ये जो कसम है ये गवाही है, ये शहादत है, ये प्रूफ है, ये टेस्टिमोनियल है जो बात आगे आ रही है उसके लिए। अब उसके बाद लफ्ज है अस्र। इसको जरा हम समझ लें कि अस्र क्या चीज है। अल अस्र कहते ही निचोड़ने को, अल मासूर कहते हैं जिसे निचोड़ा गया, अल उसारत कहते हैं रस को, रस या जो कुछ निचोड़ा गया। मासूर मान ले के ऑरेंज है और उसारत उसका जूस है। लीमो मैं निचोड़ूं, आप निचोड़े, खवातीन निचोड़े तो जूस में फर्क हो जाता है। आदत और प्रैक्टिस की बुनियाद पर जब आप उसे निचोड़ते हैं तो अल अस्र का मतलब है, अल अस्र निचोड़ना है, और अल मासूर लीमो है। अल उसारत जो है उससे कितना रस निकला डिपेंड करता है। गाय से दूध निकालते हैं। अभी मैं हैदराबाद में हमारे एक दोस्त के कैटल फार्म में गया था, तो उन्होंने बताया कि यहां जो है अल अस्र का मतलब है दूध निकालना, मासूर का मतलब है गाय या उसका थन, उसारत का मतलब है दूध। तो आप जाके जरा दूध निकाल कर बताइए 6 लीटर 8 लीटर, आपके बस की बात नहीं है। लेकिन वो जो गाय बैल पालने वाले माहिरीन होते हैं वो 8 लीटर दूध निकाल के दिखाते हैं, उसकी महारत है। निचोड़ लिया उसने, आप नहीं निचोड़ सकते, सबके बस की बात नहीं है। तो कुरान ने इस लफ्ज को कई जगह इस्तेमाल किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल में थे तो 2 लोग आए और उन्होंने अपना ख्वाब बयान किया। उनमें से एक ने कहा कि नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खिताब करके, इन्नी आसिर खमरा, आसिर असर इसी से है, मैं शराब निचोड़ रहा हूं, मैंने देखा कि मैं बादशाह के लिए शराब निचोड़ रहा हूं। असर का मतलब समझ रहे हैं, निचोड़ना, सही है। वह अंज़लना मिनस समाई माआ, कुरान ने कहा कि वह अंज़लना मिनल मुअसिराति माअन थज्जाजा, मुअसिरात बादल, मां पानी, सज्जाजा लगातार निचोड़ देने वाले बादल हम भेजते हैं, उससे निचोड़ कर बारिश बरसा दी जाती है। कुरान ने कैसे कैसे इस्तेमाल किया। वफ़ीही यासिरून, 7 साल खुशहाली के, 7 साल खुश्क साली के, 14 साल के बाद 15वां साल इतनी फसल होगी, वफ़ीही यासिरून, लोग उसमें निचोड़ेंगे, खूब फल, खूब तरकारियां। इसी से माना निकलता है बरकत का भी। वो 15वां साल बरकत का साल होगा, खूब मालामाल होंगे लोग, कामयाब होंगे। तो वल असर में आप देख सकते हैं कि असर से मुराद क्या है। असर का 2 माना है, एक लिखा लोगों ने वक्त, एक लिखा जमाना। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है। जब वक्त कहते हैं तो आपका इट इज योर पर्सनल यूसेज, उसका ताल्लुक घड़ी से होता है। इज्तिमा का वक्त कब है? आपकी ड्यूटी के वक्त क्या है? 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। मैच शुरू होने का वक्त क्या है?
वक्त जब कहते हैं तो इट्स कनेक्टेड विथ योर वॉच, इट्स योर पर्सनल थिंग, जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं और निचोड़ते हैं। आप 8 घंटे की ड्यूटी आपको मिली है तो आप भी निचोड़ते हैं, दूसरा भी निचोड़ता है। एक प्रिंसिपल भी है और एक मामूली कारकुन है, क्लर्क है। दोनों में सैलरी का फर्क क्यों है? जो पीएचडी करके प्रिंसिपल बना है उसने अपनी जिंदगी के 20-25 साल निचोड़े हैं, और निचोड़ने के नतीजे में वक्त को निचोड़ा, उसने मेहनत के इस्तेमाल किया, तजुर्बा, पढ़ना लिखना, डिग्रियां, इसलिए वो पीएचडी करके प्रिंसिपल बना। वही टाइम उसको भी मिला जो क्लर्क बना है, उसने कम निचोड़ा नहीं कुछ भी। उसने 10th और 12th पढ़ा, जाकर अभी नौकरी कर रहा है, आइडिया भी नहीं है, ख्याल भी नहीं है, तजुर्बा भी नहीं है, मुताला भी नहीं है। वल अस्र, निचोड़ा कितना? थोड़ा निचोड़ा। समझ में आ रही बात? असर का मतलब क्या है? यह है वक्त। और दूसरा माना है जमाना। जमाने से मुराद कैलेंडर से ताल्लुक है उसका, वो भी वक्त है लेकिन कैलेंडर से ताल्लुक है। 1523 में बाबर आया, 1857 में मुगलिया सल्तनत खत्म हो गई। मुगलिया दौर जब कहते हैं तो इट्स रिलेटेड विद द कैलेंडर। 1857 से 1947 तक अंग्रेजों का दौर, अंग्रेजों का जमाना गुजरा, इट्स रिलेटेड विद द कैलेंडर। 1947 से आज तक जमहूरियत का दौर, जमहूरियत का जमाना। अब आप वल असर का मतलब क्या लें? जमाना गवाही दे रहा है या वक्त गवाही दे रहा है? जमाना तो गवाही दे रहा है कि मुसलमान इस वक्त खसारे में है। आप देख लीजिए कि आज के जमाने में जो साहिब ईमान है वो शदीद तरीन आजमाइश से गुजर रहे हैं, और जो काफिर हैं, जालिम हैं, वो तो दुनिया के मजे लूट रहे हैं। तो जमाना गवाही दे रहा है या वक्त गवाही दे रहा है? कुरान ये कहता है कि तुम्हारी जिंदगियों का वक्त गवाही दे रहा है कि तुम खसारे में हो। एक एक फर्द को एड्रेस किया गया। जमाने का मतलब है एट लार्ज ह्यूमैनिटी को नहीं, एक एक पर्सन को एड्रेस करके कहा, हम कसम से कहते हैं गवाही दे रही तुम्हारी जिंदगी, योर पर्सनल लाइफ इज एट लॉस, तुम खसारे में हो। उसके बाद जो की वर्ड है इन्नल इंसान लफी खुस्र, जब खसारा कहते हैं तो रासुल माल, कैपिटल उड़ जाए। बिजनेस में आपने 1 लाख लगाया, 1 साल के बाद देखा तो 10,000 हो गया। दुनिया में इसी को खसारा कहते हैं। एक आदमी इलेक्शन हार जाता है, जाहो मनसब खत्म हो गया तो खसारा कहते हैं। लेकिन कुरान इसे सिर्फ मादी मानों में इस्तेमाल नहीं करता, इसे मानवी मानों में इस्तेमाल करता है। खसारा, जिसका ईमान नहीं वो खसारा में है, जिसकी सेहत नहीं वो खसारे में है, जिसकी सलामती नहीं वो खसारे में है। यह नया मफहूम कुरान बताता है और इंसान का जमीर गवाही देता है। इंसान का जमीर जानता है कि मैंने अपनी जिंदगी को ला यानी कामों में गुजार दिया। पैसे तो कमाया, गवाही देता है, हर इंसान का मन गवाही देता है, आई एम एट लॉस। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान सेहत, सलामती, अकल, ईमान, सवाब, इन सब चीजों में भी लॉस को मानता है। जो आदमी सिगरेट पी पी कर बीमार हो गया, उसका मन गवाही देता है कि उसने लॉस किया, अपना पैसे का लॉस किया, सेहत का लॉस किया। जिसने शराब पी पी कर कैंसर हो गया स्टमक का, उसकी जिंदगी गवाही देती है, उसका मन गवाही देता है, हाय मैंने क्या किया, आई एम एट लॉस। पैसे वाला है, प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट होगा, लेकिन वो खुद मानता है खसारे का मतलब मैंने अपनी सलामती को, सेहत को गंवा दिया। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ईमान कबूल करने के बाद कहती हैं, सब कुछ है उनके पास, तमगे हैं, डिग्रियां हैं, पैसे हैं, हुस्न है, लेकिन वो जब मोमिन होती, मोमिना होती तो गवाही देती कि हमारी जिंदगी खसारे में थी, वी वेर एट लॉस। क्योंकि वो ईमान नहीं था, किरदार नहीं था। तो किरदार का ना होना खुसर है, खुसरान है। ईमान का ना होना खुसरान है, सेहत का ना होना खुसरान है, सलामती का ना होना खुसरान है। हर इंसान खसारे में है, ये प्रिंसिपल है। ये भी हो सकता था कि सब लोग कामयाब ही सिवाय काफिरों के, ये कहा जा सकता था, नहीं कहा। सब लोग खसारे में सिवाय इन लोगों के। तो उसका मतलब है लार्जर पार्ट खसारे में है और स्मॉलर पार्ट जो अकल से जिंदगी को बिताएंगे, जो निचोड़ेंगे, वही कामयाब होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डज इट मेक सेंस? वल असर का मतलब समझ में आया?
तुम्हारी जिंदगी गवाह है, तुम्हारी जिंदगी शहादत दे रही है, तुम खसारे में हो। हाँ, इल्लल्लज़ीना आमनू, अगर तुमने ये इख्तियार किया रवैया तो कामयाबी का इम्कान है। यू नो बेटर यू आर एट लॉस। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या पूछते हो? वो जब कह रहे हैं आखिरत की बात, वो ईमान की बात, तुम ठट्टों में उड़ाते हो। ये तो मजमे में बैठकर पब्लिक में अपना इमेज बनाए रखने के लिए बातें करते हो। जब रात में जाकर सोते हो तो तुम्हारा दिल गवाही देता है, यू आर एट लॉस। तुम्हारा ज़मीर गवाही देता है? नहीं देता है। कुरान ने कहा कि तुम मालदार हो, अल्हाकुमुत तकासुर, लेकिन तुम खसारे में हो। एक सूरत पहले और एक सूरत बाद वाइलुल लिकुल्लि हुमज़ा में बताया कि तुम माल जमा जमा करके रखते, तुम खसारे में हो। दो सूरतों के बीच में वल असर बता रहा है कि तुम्हारे माल और दौलत का होना, मालदार होना कामयाब होने की अलामत नहीं है। अल्हाकुमुत तकासुर में भी बताया गया कि तुम खसारे में हो, वाइलुल लिकुल्लि हुमज़ा में भी बताया गया कि तुम खसारे में हो, और दोनों जगह माल का जिक्र है। यानी माल तुम्हारे पास होने के बावजूद यू आर एट लॉस, क्योंकि तुमने रसूल पर ईमान लाने का काम नहीं किया, अमल साले तुमने नहीं किया, नेक काम नहीं किया, बुराई में मुब्तला हो। इसलिए बीच में सूरत को रखा, दो मेटेरियल वेल बीइंग के बीच में सूरत को रखकर बताया कि सिर्फ मेटेरियल वेल बीइंग तुम्हारी कामयाबी नहीं है। ये बात भी समझ में आ गई, इसका प्लेसमेंट। अब यह है कि इंसान को खसारा, कुरान ने यह बताया कि अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़ी व यक़तऊना मा अमर अल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फिल अर्ज़ उलाइका हुमुल खासिरून। खुसरान वाले कौन है? खुसरान वाले कुरान ने कहा कि जिन्होंने अपने रब से किए हुए अहद को तोड़ा, खुसरान है उनका। जिन्होंने रिश्तों को तोड़ा, हो सकता है कि किसी ने दूसरे का माल हड़प करके जायदाद में मालदार बन गया हो, लेकिन रिश्तों को तोड़ा, मरते वक्त वो एड़ियां रगड़ कर मरता है, मरते वक्त वो कहकर मरता है कि मेरी बहन को इतना हिस्सा दे दो। इसके वाकयात आपको मिलेंगे। खुसरान वो जानता है कि मैं नुकसान में हूं, हालांकि प्रॉपर्टी से फायदा उठाया। यनखुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़ी व यक़तऊना मा अमर अल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फिल अर्ज़। कुर्सी और इक़्तिदार के लिए फसादात करने के बाद लोग हुकूमत में आ जाते हैं, तो हुकूमत का मिलना कामयाबी नहीं है। तुमने फसादात किए, तुम्हें मालूम है। तुमने मस्जिद को तोड़ा, तुम्हें मालूम है। कितने लोग बाबरी मस्जिद गिराने के बाद उनमें से लोग तौबा करके मोमिन हो गए, और एक मस्जिद गिराया, उन्होंने तय किया कि हम 100 मस्जिद बनाएंगे, 100 मस्जिद वो शख्स बनाया। कितने लोग हैं जो जानते हैं कि हमने खुसरान का काम किया, वो वापस पलट कर आए। तो कुरान कहता है कि खुसरान क्या है? खुदा से किए हुए अहद को तोड़ना खुसरान है, रिश्तों को तोड़ना खुसरान है, और फसाद मचाना खुसरान है। आपने क्या निचोड़ा घर में? मोहब्बत निचोड़ा तो कामयाब। सुबह शाम जहर निचोड़ते रहे घर में, बीवी बच्चों के दरमियान, खुसरान है। आप जिस इदारे में आपको 2 साल 3 साल की प्रेसिडेंटशिप मिली, आपने वहां निचोड़ा और इदारे को आपने ऊपर चढ़ा दिया, कामयाब है। आपने वहां जाकर ग्रुप बंदियां की, नुकसान किया, खुसरान है आपका। वल अस्र, तुम्हारा टाइम गवाही देता है 2 साल का कि तुम खुसरान में हो। तुम अमीर मुकामी थे, तुम किसी यतीम खाने के जिम्मेदार थे, तुम किसी जगह मेयर थे, तुम कहीं के चीफ मिनिस्टर थे, तुम कहीं के प्राइम मिनिस्टर थे 5 साल के लिए। खुसरान है, तुमने जो कुछ निचोड़ा जमाने में, नफरत को निचोड़ा, दुश्मनियों को निचोड़ा, खुसरान है। तुमने तरक्की दी, उसी 5 साल के अंदर खूब निचोड़ा, माशी तरक्की हुई, खुशहाली आई, तालीम में लोग आगे बढ़े। जो निचोड़ा वो कामयाब है कि नुकसानदायक, तुम जानते हो, यू नो बेटर। तो वल असर, शहादत दे रहा है तुम्हारा वक्त, तुम्हारी जिंदगी। यहां हम ये माना लेते हैं, तुम्हारा वक्त, तुम्हारी जिंदगी गवाही दे रही है। आप इसे लार्जर मानों में लेकर नुकसान कर लेंगे, इसको सही तौर पर आप कन्विंस नहीं कर सकेंगे। इट इज योर पर्सनल लाइफ। अमेरिका में एक डॉक्टर ने ईईजी, जैसे ईसीजी लेते हैं वैसे ब्रेन का जो है मेजरमेंट लेते हैं, उसकी कंडीशन को देखते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं। वो एक एपिलेप्सी का पेशेंट था, उसको उसने टेस्ट किया, मतलब वो लगाकर मेजरमेंट कर रहा था, रीडिंग्स कैलिब्रेट कर रहा था, तो वो ब्रेन कैसे काम करता है।
अचानक हार्ट अटैक हुआ और मर गया। मरने से 30 सेकंड पहले और मरने के 30 सेकंड बाद या मरने के 5 मिनट बाद तक वो सारा ग्राफ मौजूद है, वीडियो भी अवेलेबल है। डॉक्टर ने यह फाइंड आउट किया कि हर इंसान मरने से पहले अपनी पूरी जिंदगी की फिल्म 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट के अंदर पूरी फिल्म घूम जाती है और वो देख कर जाता है, रिट्रीवल करके जाता है। खुदा के पास जाकर खुदा बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने जिंदगी कैसे बिताई, जरूरत ही नहीं है। जाने वाला इंसान खुद अपनी जिंदगी की फिल्म देख कर जाता है कि उसने क्या किया। यू नो बेटर। मेमोरी रिट्रीवल कहते हैं, वो जो ईईजी से मालूम होता है, मेमोरी रिट्रीवल के वक्त मेमोरी को जब आदमी उस फाइल को तलाश करता है तो उसकी आंखें कहां जाती हैं, उसका कनेक्शन कैसे होता है न्यूरॉन का, ये देखा जाता है। तो 30 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट के अंदर उसने पूरी जिंदगी के मेमोरी को रिट्रीव किया, उसने पूरी फिल्म देखी। इसलिए आदमी मरते वक्त REM रैपिड आई मूवमेंट होता है, यानी उसके दीदे बहुत तेजी से घूमते हैं, फिर उसके बाद इंसान की निगाह फटी की फटी रह जाती है और यूं देखते हुए उसकी मौत होती है। गोया उस फिल्म का एंड होता है तो उसकी जान निकाल ली जाती है, ताकि सबूत रहे। ये वीडियो भी पेन ड्राइव में लगाकर वहां क़यामत के दिन बता दिया जाएगा कि तुमने ये फिल्म देखा था। तुम्हारी जिंदगी खसारे में है, यू नो बेटर। हमें बोलने की जरूरत नहीं, सबूत चाहिए, लाओ फरिश्तों। अब उसके बाद फाइल्स के फाइल लाए जाएंगे। कोई कहेगा कि इन फाइल को लाने की जरूरत नहीं है, मैं मानता हूं कि मैंने गलती की। 30 सेकंड की फिल्म काफी है बताने के लिए, यू आर एट लॉस। वल अस्र, तुम्हारी जिंदगी में गवाही देती है, तुम्हारी जिंदगी मौत के वक्त गवाही देती है, तुम्हारे अकल के फाइल्स गवाही देते हैं, तुम्हारे मन का ज़मीर गवाही देता है कि तुम खसारे में हो। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक हर इंसान, एवरी इंडिविजुअल, हम में से भी बहुत से लोगों के लिए अप्लाई होगा, हर इंसान खसारे में है, नुकसान में है। खुदा से अहद को तोड़ा, रिश्तों को तोड़ा, घर को फसाद से भर दिया, इदारे को फसाद से भर दिया, जहां जिम्मेदार थे वहां फसाद ही फसाद मचा दिया। और क्या चाहिए प्रूफ? कहां से प्रूफ लाएं? तुम खुद गवाह हो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरी। ये जनरल अल्लाह ताला ने कह दिया, सब खसारे में, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। हां, इससे एक्सेप्शन खसारे से ये 4 लोग होंगे। अब हम आपको समझने के लिए बताएंगे, समझने के लिए। अल्लाह ताला के कंप्यूटर में कैलकुलेशन कैसे होता नहीं मालूम है। हम जब बचपन में पढ़े थे तो पार्ट ए का क्वेश्चन, पार्ट बी का क्वेश्चन, पार्ट सी का क्वेश्चन होता था। पार्ट ए का क्वेश्चन यस और नो 1 नंबर, पार्ट बी का क्वेश्चन 1 पैराग्राफ 3 नंबर, पार्ट सी का क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है 10 नंबर, 8 नंबर। सही है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 चॉइस दिए गए, 1 टिक किया आपने, सही हो गया। आगे जब पीजी लेवल पे जाते हैं तो गलत टिक किया, माइनस नंबर है, नेगेटिव मार्किंग है। सही है? नीट में भी तो नेगेटिव मार्किंग होती है, आपने गलत किया। एक और है जो मैथमेटिक्स में यहां नहीं है दुनिया में, वो है एक्सपोनेंशियल मार्किंग भी होगी। अब मैं आता हूं, इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान जो लोग ले आए 25 नंबर है, व अमिलुस सालिहात 25 नंबर है, व तवासौ बिस सब्र 25 नंबर है, व तवासौ बिस सब्र 25 नंबर है। हर आदमी कैलकुलेट करे कि 100 में कितना नंबर ले रहा है। 25 में फलस्तीनियों का जो ईमान है, वो ईमान और हमारा ईमान दोनों में कितना फर्क है देख सकते हैं। दोनों का एक ही नंबर मिलेगा। तो जब उनको आप 25 माने, सहाबा को 25 माने, सहाबा के दौर याद दिलाने वाले लोग हैं, तो 25-25 उन लोगों को रखें तो हमें क्या नंबर देंगे हम खुद जानते हैं। और अगर हमने ईमान में नेगेटिव काम किया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। किसी से कर्ज निकालना था, उसने कहा भाई आखिरत में सवाब मिलेगा, मैं वो आखिरत नहीं मानता, पैसे चाहिए, लाओ इधर रखो, तो आपने ईमान की नफी की, माइनस नंबर हो गया फौरन आपका। सही है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, और आपने, किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह का ये काम था, ये तरीका था, कहा कि भाई वो सब वो जमाने की बातें, आज के जमाने की बातें करो, आपका ईमान में, रिसालत में नंबर माइनस हो गया।
تو پہلے ہی ہمارا نمبر 10 تھا ایمان میں، اس میں زندگی میں کرتے کرتے مائنس کرتے کرتے 4 پہ آ کر رک گئے. وعامل الصالحات، عمل صالح میں ہر چیز کا نمبر ہے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ نماز روزے سے زندگی کافی کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، قرآن میں بہت سے کوشچن پیپر بتائے گئے ہیں. انسانوں کے درمیان گواہی دینا، انصاف کا کام کرنا، اچھی پیرنٹنگ کرنا، اچھے شوہر بن کر رہنا، اچھی بیوی بن کر رہنا، سب کے نمبر ہیں. صرف آپ کے نماز روزے کام آئیں گے. 25 نمبر میں ہو سکتا ہے کہ نماز آدھا نمبر ہو، روزہ آدھا نمبر ہو. مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں میں، ایسے اور بہت سے کام ہی ایمانداری سے آپ نے کام کیا کہ نہیں کیا، یہ بھی تو اس کا بھی ایک نمبر ہوگا. ایک نمبر ہوگا اس کا. دعوت کا کام کیا، 4 نمبر ہوگا. الگ الگ نمبر ہیں. پراپرٹی صحیح تقسیم کے نہیں کی، 5 نمبر ہوں گے. آپ کے سامنے ایک آدمی تڑپ رہا تھا، مر رہا تھا روڈ پر، آپ نے ہٹایا کہ نہیں، اس کا 1 نمبر ہوگا. سب ملا کر 25 کا مارک ہے. اب اس میں آپ نے ایک بندے کو مومن بنایا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. عمل صالح ہے یہ. آپ نے ایک بزرگ کو، بوڑھے آدمی کو مومن بنایا. 2 سال کے بعد، 1 سال کے بعد وہ مر گیا. آپ کا 5 نمبر مل گیا، 5 کے 5. آپ نے ایک ینگ لڑکے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. اس نے ایک لڑکی پر کام کیا، اس سے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. دونوں مسلمان ہوئے، دونوں شادیاں کی. ان کی اولاد بھی، ان کی اولاد بڑے دائی بنے. ان کی کوششوں کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مومن ہوئے. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی. تو آپ کا جو دعوتی کام 4 نمبر کا تھا، ملٹیپلائڈ پاور بائی 10 پاور بائی 10 ہو جائے گا. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میتھمیٹکس میں کتنا ثواب ملا. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ میں نے ایک بزرگ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا تو 4 raised to the power 1. میں نے ایک نوجوان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اس نے کسی اور پر کام کیا، اس نے کسی اور پر کام کیا، 4 to the power of 10. ان کی نسلیں کام کرتی رہی، 4 to the power of 10 to the power of 10 to the power of 10. وعامل الصالحات وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا. وصیت اور نصیحت میں فرق ہے کہ نصیحت آپشنل ہے، وصیت کمپلسری ہے. مرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو شریعت کا حصہ ہے کہ اس وصیت کو پورا کیا جائے. نیکی کا کام کرنا نصیحت نہیں ہے، نیکی کا کام کرنا وصیت ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام ایک کمپلسری ڈیڈ ہے، یہ آپشنل نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کا احسان ہم کسی جماعت سے تعلق نہیں کرتے، بس نماز روزے کی پابندی. آپ نے تو پورا 25 مارک گم کر دیا. 25% آپ نے اٹمپٹ ہی نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے 2-25 میں آپ نے 1-25 میں 4 نمبر لیے ایمان میں، عمل صالح میں 10 پر گئے اور نیگیٹو مارکنگ کی وجہ سے 8 پر آ گئے، اور کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں شامل نہیں. پورا ٹوٹل نکالیں تو 100 میں 12 نکلے آپ کے. کہاں سے کامیاب ہو گئے؟ خسارے میں. ایمان لانے کے باوجود خسارہ ہے، کچھ نہیں کیا. ایمان بھی کیا ہے، گورنمنٹ کے رجسٹر میں مسلمان کے کیٹیگری میں مسلمان ٹک کر دیا. وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا، اٹس اے مینڈیٹری ڈیوٹی. آپ کریں میں کروں اس پر غور کرنا ہے. وتواصوا بالصبر، اور اس راہ میں آنے والی مشکلات کا ادراک کرنا. مصر کی جیلوں میں، بنگلہ دیش کی پھانسی کے تختوں پر جو لوگ لٹکے، ان کا صبر اور ہمارے صبر میں کیا کوئی فرق ہے؟ نمبر 25 ملیں گے ہمیں. تو قرآن کہتا ہے سب خسارے میں ہیں سوائے یہ 4 کام کرنے والوں کے. یہ 4 کام بھی کرنے والے 100 میں کتنا نمبر لیں گے؟ تمہاری زندگی گواہی دیتی. یو نو بیٹر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.